Hello everyone, my name is Ritvika Vyas, your science mentor for class 8. And today we are going to study further in your chapter 4, that is electricity, magnetic and heating effects. In the previous session of this chapter, we have learned how electric current has a magnetic property. Electricity can generate magnetism, by which we can get our electromagnets. Apart from magnetic effect, electricity also has a heating effect. Therefore, the name of this chapter, electricity, magnetic and heating effects. We have already discussed about the magnetic effects, right? So in this session, we are going to talk about the heating effects of electricity or electric current. Before learning about the heating effects, let me ask you a few questions. Have you ever felt an electric appliance getting heated up? For example, when you plug in the charger and it stays there for too long, you can feel the heat and the warmth coming out, right? When you touch it, it feels hot. Why is it that? Have you ever heard अंदर से तो इलेक्ट्रिसिटी ही पास हो रही है बट हीट कैसे जनरेट हो रही है? मैग्नेटिज्म तो हमने पढ़ लिया दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड. व्हाट अबाउट हीट? Why does the appliances heat up? To know more about this question, let us perform a very interesting activity. What do you have to do for this activity? Fix two nails on the cardboard about 5 centimeter apart. Then tie the nichrome wire between the nails. कार्डबोर्ड के ऊपर दो नेल्स रखने हैं, उनके बीच में टाई अप के लिए एक नाइक्रोम वायर लेनी है. नाउ व्हाई नाइक्रोम वायर? We'll discuss further. Make the electric connection with the switch off and touch the nichrome wire. Note how it works, how it feels. You made the circuit. ये सर्किट हमने फर्स्ट सेशन में डिस्कस किया था कि एक स्ट्रेट सर्किट कैसे बनाते हैं. वी प्लेस द नेल्स, वी पुट द वायर, वी कनेक्टेड टू अ सेल, राइट, एंड देन सेफ्टी पिन के लिए ताकि कंट्रोल हमारे हाथ में रहे ऑन एंड ऑफ का. हम स्विच ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं वाया सेफ्टी पिन. तो अभी जब स्विच ऑफ है, जब सेफ्टी पिन इज नॉट कनेक्टेड, द सर्किट इज नॉट कंप्लीट, टच द वायर. कैसा महसूस होता है? हाउ डज इट फील? देन turn the switch on for 30 seconds, then switch it off again. Now turn the switch on, join the safety pin, complete the circuit for 30 seconds and then switch off again. Now touch the wire and tell us how it feels. ये पूरा आपका सेटअप है, राइट? दो नेल्स लिए, ये रही आपकी नाइक्रोम वायर, ये जो दिख रही है, दिस इज योर नाइक्रोम वायर. यू कनेक्टेड इट विद अ बैटरी और अ सेल एंड ये सेफ्टी पिन ऑन एंड ऑफ. दिस इज ऑफ. और जब सेफ्टी पिन को यहाँ टच कर देंगे इट विल बी ऑन, द सर्किट विल बी ऑन, करंट फ्लो होगा. कंप्लीट सर्किट चाहिए ना करंट को फ्लो होने के लिए. नाउ व्हेन द सर्किट इज स्विच्ड ऑफ, टच द वायर. You will feel nothing. The wire is as it is at room temperature. But when you switched on the circuit, when you joined the safety pin, after 30 seconds, when you switch it off, then when you will touch the wire, what will you observe? You will see that the nichrome wire feels warm after current passes through it. जब करंट का सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया 30 सेकेंड्स का, देन व्हेन यू टच द नाइक्रोम वायर इट विल फील वार्म. व्हाई? क्या चेंज हुआ है? सर्किट के अंदर क्या ऐसा चेंज हुआ? करंट फ्लो चेंज हुआ है. दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी हैज अ हीटिंग इफेक्ट. जब इलेक्ट्रिसिटी पास हुई उस सर्किट से, तभी तो नाइक्रोम वायर हीट अप हुई. That means electricity, apart from producing magnetic effect, which we have learned in the previous session, is also producing a heating effect, right? So why does this happen? ऐसा हो क्यों रहा है? लेकिन हीटिंग इफेक्ट क्यों कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी जब किसी सर्किट से पास होती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, ये तो हमने पढ़ लिया, बट हीटिंग क्यों हो रही है? क्या है ऐसा? लेट्स इमेजिन देयर इज अ कॉरिडोर. इट इज फिल्ड विथ स्टूडेंट्स एंड यू हैव टू पास थ्रू हिम, राइट? यू हैव टू पास थ्रू द कॉरिडोर. बहुत सारा रेजिस्टेंस आएगा, करेक्ट? बहुत सारे स्टूडेंट्स इधर से उधर जा रहे हैं, तो आपको क्रॉस करने में प्रॉब्लम आएगी. क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है. अब जब आपको क्रॉस करने में प्रॉब्लम आएगी तो क्या होगा? आपकी एनर्जी ज्यादा लगेगी. और एक सिंपल कॉरिडोर है, एक खाली कॉरिडोर है, राइट? कुछ नहीं है उसमें, एंड यू विल पास थ्रू इट स्ट्रेटली विदाउट एनी रेजिस्टेंस, तो आपकी एनर्जी कम लगेगी.
सिमिलरली ये जो नाइक्रोम वायर की हम बात कर रहे हैं, कॉपर वायर्स की हम जो बात कर रहे हैं, या कोई भी कंडक्टर की बात कर रहे हैं, कंडक्टर मतलब जिससे इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास ऑन हो सकती है। गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर व्हाट? स्टील, कॉपर, नाइक्रोम। बैड कंडक्टर्स आर व्हाट? वुड। वुड से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, राइट? प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्लास्टिक से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। इनसे हो रही है, इसीलिए तो वायर्स इनसे बनते हैं, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स। अब जब इलेक्ट्रिसिटी इनसे पास होती है वायर से, कुछ रेजिस्टेंस उस करंट को भी मिलता है, इसीलिए वो करंट उस रेजिस्टेंस के कारण हीटअप होता है, उसकी एनर्जी स्पेंड होती है। समझ में आई बात? यानी कि वुड या प्लास्टिक लेंगे तो उनमें तो इतना ज्यादा रेजिस्टेंस है, इतने बैड कंडक्टर्स हैं, वो इतना रेजिस्टेंस है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो ही नहीं सकती। बट मेटल्स हैं, स्टील हो गया, आयरन हो गया, इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। कॉपर हो गया, नाइक्रोम हो गया, बट थोड़ा रेजिस्टेंस इनमें भी होता है। सो बिकॉज ऑफ दैट रेजिस्टेंस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासिस थ्रू देम इट जनरेट्स हीट, क्योंकि उसकी एनर्जी लॉस हो रही है। इसीलिए वायर हीटअप क्यों हुई? कंडक्टर ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट। जो कंडक्टर है, जो वायर है, उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, बट स्टिल इट विल फेस सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। नाइक्रोम वायर हैज हायर रेजिस्टेंस देन कॉपर वायर। अब नाइक्रोम वायर हमने क्यों चूज की? जब मैंने एक्टिविटी के स्टार्ट में आपको बताया था, कॉपर वायर से ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, इसीलिए ज्यादा हीटअप होगी। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ही ज्यादा हीटअप होगी चीजें। Due to resistance, electrical energy changes into heat energy. Due to this resistance, that electric energy will face resistance and it will convert into heat energy. कॉरिडोर वाला एग्जाम्पल याद रखो कि आपको जब एक फील्ड कॉरिडोर से पास होना होगा तो आपकी एनर्जी ज्यादा लगेगी, राइट? यू माइट हीट अप कि अरे ये क्या मुसीबत है, बट खाली कॉरिडोर है, यू विल इजीली पास थ्रू इट, एनर्जी कम लगेगी। सिमिलर गोज विद दीज वायर्स एंड कंडक्टर्स। Now, heating effect of electric current is what? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि now tell us or define the heating effect of electric current, what it actually is, what will you say? You will say conductor becomes warm or hot when an electric current passes through it. It's a prime example. Conductor becomes warm or hot. कंडक्टर, नॉट बैड कंडक्टर्स, कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं, जैसे कि वायर्स, मेटल्स, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। This is the whole concept why heating effect is seen when an electric current passes through a conductor, because it faces resistance. इस एग्जाम्पल को देख लो, क्या है ये? हीटर है ना? रूम हीटर्स, when the temperature is very low we switch on room heaters in winters. Why? Because जब इलेक्ट्रिसिटी जाती है इस अप्लायंस में, it heats up these rods. These rods are what? These are conductors. So when electricity passes through them, resistance हुआ तो वो हीट अप हो जाएगी। इसीलिए पूरे रूम का टेम्परेचर जो है, जब कोल्ड होता है तो हीटर ऐसे वार्म करता है। क्यों? क्योंकि इन कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, रेजिस्टेंस होगा, ये हीट अप होंगे और हमें वार्मथ देंगे। और कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं इनके? रूम हीटर्स हो गए, इलेक्ट्रिक स्टोव्स, केटल्स, irons, immersion rods, hair dryers. All these are the examples of what? Heating effect of electric current. आपका इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है क्या? आपने स्विच ऑन किया, फैन ऑन हो गया, प्लग इन किया चार्जर, आपका फोन चार्ज होने लगा। ये बेसिक एग्जांपल्स हैं। मैग्नेटिज्म का एग्जांपल हमने पढ़ लिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में, इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा था, क्रेन्स में यूज हो रहा था। बट जब हीटिंग की बात होती है कि इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग अप्लायंस में क्या यूजेस हैं, तो ये सारे यूजेस हैं, ये एप्लीकेशन है। रूम हीटर्स, इलेक्ट्रिक स्टोव्स, केटल्स, आयरन्स, इमर्जन रॉड्स एंड हेयर ड्रायर्स। इलेक्ट्रिक स्टोव में भी क्या हो रहा है? ये रॉड्स होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, ये कंडक्टर है, रेजिस्टेंस देगा, हीट अप होगा, हमारा खाना गर्म हो जाता है। सिमिलर गोज विद द केटल्स टू बॉईल द वाटर। आयरन इज अ प्राइम एग्जांपल। इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज इनटू दिस अप्लायंस, इट हीट्स अप। ये प्लेट जो होती है, इट्स अ कंडक्टर, तो ये हीट अप हो जाएगी क्योंकि रेजिस्टेंस दे रही है, एंड वी कैन आयरन द क्लोथ्स। सिमिलर गोज विद द इमर्जन रॉड्स, जो पानी गर्म करने के लिए यूज होते हैं। हेयर ड्रायर्स में भी सेम अप्लायंस यूज होता है, सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है कि इलेक्ट्रिसिटी गई एंड अंदर के रॉड्स जो होते हैं वो हीट अप हुए, उससे हमें हीट मिल रही है और इस हीट को हम अपने डेली यूज में काम ले रहे हैं।
क्या प्रिंसिपल लग रहा है इनमें? दे हैव अ हीटिंग एलिमेंट, अ वायर और अ कॉइल। इन सारे अप्लायंसेस में क्या है? एक कंडक्टर होगा। कंडक्टर क्या होगा? वायर होगी या कॉइल होगी। उस कंडक्टर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है देन इट प्रोड्यूसेस रेजिस्टेंस। उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस हीट। In some devices, this element glows red hot when current flows. कुछ जैसे स्टोव में आपने देखा होगा ना, जब पास होती है तो हमें ब्राइट भी दिखता है वो। क्यों? क्योंकि हीट अप हो रही है, राइट? ये हीट अप होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, रेजिस्टेंस डेवलप हुआ उस कंडक्टर के अगेंस्ट और हीट हो गया। हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिक एनर्जी। That's how electric energy gets converted into heat energy due to the resistance of the conductor. That's the whole concept of heating effect of electric current. And क्योंकि हीट होता है तो हमें वो ग्लो करता हुआ दिखता है। इसका और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? आपके बल्ब्स। बल्ब्स में वो पतली सी वायर लगी होती है। अगर आपने कभी नोटिस किया होगा, ये आपका बल्ब है ना? इस बल्ब में ये ऐसी वायर लगी होती है। This wire is a conductor and when electricity flows through it, ये resistance develop करती है, it gets heated up, heat के साथ it gives us the light energy. जब वो heat के साथ glow करती है, similar to this, इसीलिए हमें बल्ब से वो light मिलती है. That's the whole concept. नाउ हीट प्रॉब्लम्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स। अब ये हीटिंग तो हो रही है लेकिन इससे कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है। क्यों होती है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, रेजिस्टेंस डेवलप हुआ, उससे हीट प्रोड्यूस हुई, बट उस हीट से हमारे जो सॉकेट्स हैं, प्लग्स हैं, वो मेल्ट भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो प्लास्टिक के बने, राइट? एंड इनमें जा रही है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इनमें जाएगी टू चार्ज अप, राइट? देन क्या होगा? रेजिस्टेंस डेवलप होगी, तो यहां पे हीट डेवलप होगी, बट उस हीट से क्या हो रहा है? जो बाकी का प्लास्टिक है वो डैमेज होगा। अगर अच्छी ग्रेड का प्लास्टिक नहीं है तो क्या होगा? वो डैमेज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है। सो एनर्जी लॉस इन वायर्स ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। तो जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है कंडक्टर से तो एनर्जी लॉस भी तो होगा ट्रांसमिशन। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस आ रहा है तो एनर्जी लॉस होगा। कॉरिडोर वाला एग्जांपल याद रखिए, ओवर हीटिंग में डैमेज प्लग्स एंड सॉकेट्स। इसीलिए ये जो ओवर हीटिंग हो जाती है, रेजिस्टेंस आ रहा है कंडक्टर की तरफ, इलेक्ट्रिसिटी को पास होना है, दोनों भिड़ जाएंगे, है ना? रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिसिटी, उससे जनरेट होगी हीट। बट कई बार ओवर हीटिंग के कारण प्लग्स और सॉकेट्स जो हैं उनमें डैमेज हो जाता है। बट सेफ्टी के लिए हम क्या कर सकते हैं? यूज प्रॉपर वायर्स, प्लग्स एंड सॉकेट्स टू अवॉइड अननेसेसरी हीटिंग। अननेसेसरी के हीटिंग के चक्कर में आप लोगों को खराब चीजें नहीं यूज करनी। क्या करना है? प्रॉपर वायर्स, प्लग्स एंड सॉकेट्स, मतलब हाई क्वालिटी, जिनके प्लास्टिक का क्वालिटी है, या कोई भी बैड कंडक्टर, क्योंकि बैड कंडक्टर ही तो बचा सकता है, उसकी क्वालिटी हाई होनी चाहिए। एंश्योर ऑल कंपोनेंट्स आर रेटेड फॉर द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक करंट। जो भी आप अप्लायंस लें, प्लग्स, सॉकेट, उनका ग्रेड होता है, अच्छी ग्रेड का लें ताकि ओवर हीटिंग से उनमें प्रॉब्लम ना हो। जैसे कई बार फोन्स और चार्जर्स भी हीटअप हो जाते हैं, राइट? जब आप ज़्यादा टाइम तक लगा के रखते हैं, यही कॉन्सेप्ट होता है उनके पीछे भी। अब इस चीज़ का हम इंडस्ट्रियल यूज़ देखते हैं। ये तो हमने कर ली घर की बात, सॉकेट्स में, हेयर ड्रायर्स में, स्टोव्स में। इंडस्ट्रियल यूजेस इसके क्या क्या हैं? इंडस्ट्री में ये बहुत स्मार्टली काम करते हैं। मतलब हमने दिया इलेक्ट्रिसिटी, हीट अप हो गया, अब उस हीट को कितनी चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हैं, कितने उसके एप्लीकेशंस है। हीट एनर्जी हैज़ अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस, लाइक फॉर मेल्टिंग द मेटल्स। मेटल्स को मेल्ट करना इज़ अ वेरी टफ जॉब। क्यों? क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए। तो उन मेटल्स को या स्क्रैप को मेल्ट करने के लिए इंडस्ट्रीज में ये हीटिंग इफेक्ट यूज होता है। कैसे होता है? widely used in industries. This phenomena is widely used in industries like steel plants, special high temperature electric furnaces. स्टील प्लांट्स में यूज होता है। स्टील प्लांट्स में क्यों यूज होता है? क्योंकि हीट आएगी तो स्टील मेल्ट हो जाएगा। अब उस स्टील को आप अपनी तरफ से मोल्ड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ये स्टील प्लांट है, हमने स्टील को कैसे भी शेप दे सकते हैं। वंस इट इज मेल्टेड, अब हम उसे कैसे भी शेप दे सकते हैं। स्टील के कितने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, आपकी यूटेंसिल्स हैं, व्हीकल्स में स्टील यूज होता है, बहुत सारे मेटल्स यूज होते हैं। तो ये फर्नांसेस में
स्टील प्लांट्स के इलेक्ट्रिक फर्नेसेस में ये मेटल को मेल्ट करते हैं, फिर उसको मोल्ड करते हैं। किसकी बदौलत? इलेक्ट्रिसिटी की बदौलत। क्यों? क्योंकि हीटिंग इफेक्ट दे रहा है, उस हीट को हम अपने इंडस्ट्रियल पर्पसेस में यूज कर रहे हैं। मेल्ट एंड रिसाइकल स्क्रैप स्टील इनटू यूजेबल स्टील। जो वेस्ट स्टील है, जो स्क्रैप यार्ड्स में, जिससे हम क्रेन को लिफ्ट कर रहे थे, है ना, क्रेन से हम आयरन और स्टील ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट कर रहे थे। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिक इफेक्ट स्क्रैप यार्ड से, कचरे से, लिटरली कचरे से हमें हमारा मेटल निकाल के दे रहा है। अब उसी इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट यूज करके हम उस स्टील को, आयरन को मेल्ट करके अपने हिसाब से मोल्ड करके उन्हें दोबारा यूजेबल बना सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। नाउ अब आपने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट भी हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिक इफेक्ट भी हो रहा है, और कैसे हम इनको अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। बट जब हमने ये एक्टिविटी परफॉर्म की थी इनिशियल वाली, जिसमें हमने सर्किट बनाया था नाइक्रोम वायर का हीटिंग इफेक्ट जानने के लिए, अगर उस सेल की जगह, सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उस सेल्स की जगह अगर मैं 2 सेल्स लगा दूं तो इलेक्ट्रिसिटी और बढ़ा दूं, और ज्यादा करंट फ्लो हो, तो क्या हो सकता है उस वायर में? क्या कुछ डिफरेंस होगा? क्या वो वायर कम हीट अप होगी या ज्यादा हीट अप होगी? सो लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी फॉर दैट। रिपीट द नाइक्रोम वायर एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ बैटरी ऑफ 2 सेल्स। अब 2 सेल्स यूज करेंगे, क्या होगा? ऑब्जर्व हाउ मच द वायर हीट्स अप इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। अब क्या होगा? क्या सोच सकते हैं आप लोग कि अगर मैंने 2 सेल्स लगाई, अब इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा फ्लो हो रही है, तो क्या रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं होगा? जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। मान लीजिए कि उस कॉरिडोर में आपके साथ आपके 2 फ्रेंड्स को भी पास ऑन करना है, तो क्या रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं हो जाएगा? क्या आप लोग ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे? करेक्ट। इसीलिए हीटिंग भी ज्यादा होगी। क्या होगी? वायर बिकम्स हॉटर विथ 2 सेल्स। जब 2 सेल्स लगा दी, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ज्यादा हुआ, रेजिस्टेंस भी उतना ज्यादा होगा, बिकॉज रेजिस्टेंस इज इक्वली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी उतना ज्यादा वहां से रेजिस्टेंस आएगा कंडक्टर की तरफ से। इसीलिए 2 सेल्स लगाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस के साथ टेम्परेचर भी बढ़ेगा, हीटिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा, इसीलिए वायर और भी ज्यादा हॉट हो जाएगी। क्योंकि मोर करंट इज इक्वल टू मोर हीट, बिकॉज मोर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोर रेजिस्टेंस। सिंपल, राइट? एंड resistance will lead to more heat. Heat produced in a wire depends on, लेकिन ये जो हीट प्रोड्यूस्ड हो रही है वायर में, ये डिपेंड किस पे करती है? अब हमने ये तो देखा कि सेल पे तो डिपेंड कर रही है। जितना ज्यादा सेल बढ़ाओगे, मतलब अगर स्ट्रॉन्गर बैटरी हुई तो रेजिस्टेंस और डेवलप होगा, तो वायर और हीट अप होगी। बट क्या वायर का भी कंट्रीब्यूशन है क्या कुछ इस हीटिंग इफेक्ट में? ऑफ कोर्स है। वायर की लेंथ, उसकी विड्थ, या उसका जो मटेरियल है, कॉपर है या नाइक्रोम से बनी है, इस पे भी उसका हीटिंग इफेक्ट डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, depends on the material of the wire, thickness, length and time for which current flows. Now let's go through them one by one. किस पे डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। ये हमने यही देख लिया कि जैसे करंट का मैग्नीट्यूड बनाया, मैग्नीट्यूड मतलब उसको एम्पलीफाई किया, ज्यादा करंट फ्लो होने से ज्यादा हीट होगी। क्यों? क्योंकि ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। मटीरियल ऑफ द वायर, स्टार्टिंग में हमने नाइक्रोम वायर क्यों चूज की थी? क्योंकि नाइक्रोम प्रोवाइड्स मोर रेजिस्टेंस, इसलिए मोर हीटिंग इफेक्ट इंस्टेड ऑफ कॉपर वायर। तो मटीरियल विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द हीटिंग इफेक्ट। थिकनेस ऑफ द वायर, जितनी मोटी वायर होगी ऑब्वियसली उसमें रेजिस्टेंस भी उतना ज्यादा होगा। लेंथ ऑफ द वायर, जितनी लंबी वायर हुई तो रेजिस्टेंस भी उतना ज्यादा होगा। जितना लंबा कॉरिडोर हुआ, उसको पास करने में आपको उतनी ही एनर्जी लगेगी। देयरफॉर लेंथ ऑफ द वायर ऑल्सो प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. The more longer the wire, the more will be its heating effect. Time for which the current flows, जितनी ज्यादा बार करंट फ्लो होगा उतनी ज्यादा वायर हीट अप होगी, राइट? ये तो आपने वैसे ही देखा होगा, जितनी ज्यादा बार हम चार्जिंग पे लगा के रखते हैं अपने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, जितनी ज्यादा देर के लिए लगा के रखेंगे उतने वो ज्यादा हीट अप होंगे। क्यों? क्योंकि टाइम इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू, इक्वली प्रोपोर्शनल टू द हीटिंग इफेक्ट. सो दीज ऑल वर द फैक्टर्स. एक तो था कि हमारा सेल, अगर जितना हम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे उतना ज़्यादा हीट डेवलप होगी, और मटेरियल, थिकनेस, लेंथ एंड द टाइम फॉर विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. So what did we learn today?
We learned about the heating effects of electric current, the appliances in which this concept is being used, like your stoves, your hair dryers, etc. In industries, it's also used like that. And what is the actual concept of resistance? और रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है? वायर के लेंथ के, उसके विड्थ के, उसकी थिकनेस के, करेक्ट? So let me test your knowledge for today's session and answer a few questions of mine. Starting with question number 1 we have here. Which of the following terms refers to the warming of a conductor when current passes through it? एक कंडक्टर से जब कोई करंट फ्लो होता है एंड इफ इट हीट्स अप, व्हाट इज दैट? मैग्नेटिक इफेक्ट? नो. केमिकल इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, लाइट इफेक्ट? इट्स हीटिंग इफेक्ट. मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा? जब मैग्नेटिज्म आएगा, कोई कंपस का डिफ्लेक्शन हुआ, राइट, जैसे हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था. Which of the following appliances works on the heating effect of electric current? Now, which of these is working on the heating effect? Is ceiling fan working on the heating effect? No. Electric room heater, refrigerator, mixer grinder. Electric room heater. उसमें जो रॉड्स होती हैं वो रेजिस्टेंस डेवलप करेंगी, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो वो हीट अप हो जाएंगी. Which of the following appliances does not use the heating effect of electric current? Now, which does not use, right? प्रीवियस क्वेश्चन में था which does use, इसमें which does not use. ये कई बार आप लोग स्किप कर जाते हैं एग्जाम में. सो रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली. which does not use? Immersion rod, hair dryer, electric kettle, LED torch. LED torch, because all these three they do use the heating effect of electric current, but this one does not. So that's all for today's session. Let's meet in the next session. Till then, keep studying and thank you very much.